Today we will discuss here the vegetative reproduction in plants. Plant reproduce by the sexual means and sexual means. In case of sexual reproduction, one of the type that is vegetative reproduction in plants. So here we will see what is meant by vegetative type of reproduction. So in case of vegetative reproduction, it is one of the form of the asexual reproduction. As we say, there are the two different type of reproduction, asexual and sexual reproduction. This vegetative reproduction is one of the asexual reproduction which is occurred in case of the plants, where the new individuals are arise without the formation of seeds or the spores. Here there is not the formation of the seeds or the spores. These are not formed by the seeds or the spores. These plants are formed from the vegetative part of the plant body, and because of this is called as the वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें जो इंडिविजुअल तैयार होता है वो सीड से तैयार नहीं होता, वो तैयार होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से, जिसे हम कहते हैं स्टेम, रूट, लीफ. सो दिस प्रोसेस, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस यूटिलाइजेस द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक द स्टेम, रूट और लीफ. जो भी प्लांट तैयार होगा, जो भी इंडिविजुअल तैयार होगा, these are formed from the vegetative part of the plant body, that is the stem, root or leaf. And this vegetative type of reproduction that may use in many commercial crops, ornamental plants, and these commercial crops and ornamental plants are formed by the vegetative propagation, means these are propagated vegetatively. So this is the what exactly mean by the vegetative type of reproduction. Now this vegetative reproduction, these are occurred in plants in two ways. There are the two types of the reproduction. One of the vegetative reproduction which occurred naturally in the plants, and another type of the reproduction, vegetative reproduction, which are performed manually. So we can perform it manually. So this type of vegetative reproduction is the artificial reproduction, or we can say this is the artificial methods. Means for the vegetative reproduction, there are the two methods. One is the natural method, other is the artificial method. Natural method, in this case, it occurs naturally in the plants. प्लांट्स में जो भी कुछ प्लांट के पार्ट्स है, वो पार्ट्स प्रोपोगेटिंग ऑर्गन करके काम करते हैं, और उसी से ही नया प्लांट तैयार होता है, नया इंडिविजुअल तैयार होता है. जैसे फॉर एग्जांपल राइजोम. राइजोम इज अ अंडरग्राउंड स्टेम which horizontally grown, and from this rhizome there is a formation of the new individual or the new plants. Another case that is the tuber. ट्यूबर ये भी नेचुरली एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, एंड दिस ट्यूबर which is the modified stem from which there is also the formation of the another plant. Bulb, जिसे हम bulb example is onion. जो onion है, this is also the modification of the stem, and these modified stem, from this modified stem there is a formation of the new individuals, new plants. When we put into the soil, हम जब भी उसको सॉइल में लगाते हैं तो उससे नया प्लांट तैयार होता है. ऐसे डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स है जिससे नेचुरली वो पौधा तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अभी जो आर्टिफिशियल मेथड है उसको हम मैन्युअली परफॉर्म करते हैं, मतलब हम खुद उसको लगाकर तैयार करते हैं, जैसे जिसको हम बोलेंगे परफॉर्म मैन्युअली.
that is by using the different methods, that is called as the cuttings. Another is budding और तीसरा है grafting. अभी हमें देखना है कि what is mean by cutting, what is mean by budding and what is mean by grafting. जिसे हम कटिंग यूज करके नया प्लांट तैयार करेंगे, या फिर बर्ड, जो प्लांट्स में जो डिफरेंट पार्ट्स है जैसे रूट स्टेम लीफ, और जो स्टेम पर ग्रोइंग पार्ट आता है जिसको हम बर्ड कहते हैं, या फिर एक प्लांट का पार्ट दूसरे प्लांट पे जो हम लगाते हैं जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, वो भी एक टाइप का आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन जो नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसे कोई चेंज करने की या लगाने की जरूरत नहीं, नेचुरली जैसे राइजोम या जिंजर या फिर ट्यूबर अगर रखते ट्यूबर, उससे नेचुरली नया पौधा तैयार होता है। सो ये हो गया नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अभी इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, जिसको हम देखेंगे, ये तीन टाइप का है जैसे हमने अभी पहले देखा। फर्स्ट इज द कटिंग, सेकंड है बडिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग। कटिंग यानी दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेम, रूट और लीफ इज कट एंड दैट इज रूटेड, जिसको कट किया जाता है और उसको रूटिंग के लिए रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं कटिंग्स। ये तीन टाइप के हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग। दूसरा है बडिंग, अ सिंगल बर्ड इंसर्टेड इनटू द रूट स्टॉक, मतलब एक प्लांट का जो बर्ड है वो दूसरे प्लांट पर हम इंसर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बडिंग। और तीसरा है ग्राफ्टिंग, जिसमें जॉइनिंग द डिजायर्ड प्लांट, जैसे जिस प्लांट का हमको उस पर लगाना है, और वो जो एक पार्ट है प्लांट का जिसको हम सायन बोलते हैं, और दूसरा जो है जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं, जिसकी रूट सिस्टम तैयार होती है उस पर लगाते हैं, जिसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ऐसे तीन टाइप के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू दी स्टेम कटिंग्स, दिस cutting is one of the type of vegetative reproduction plant. This is the artificial method of vegetative reproduction in plants. So what exactly mean by the cutting? So this, there are the three type of the stem cuttings that we have seen. One is the stem cutting, other is the root cutting, other and third one is the leaf cutting. अगर हम ये स्टेम देखेंगे, स्टेम कटिंग, इसके हम देख रहे हैं कि ये स्टेम है और इसको कट किया गया है, इसका कटिंग बनाया है और इसको रूटिंग के लिए डाला गया है पॉलीथीन में। मतलब इससे जो तैयार हो रहा है, ये नया पौधा तैयार हो रहा है बाय द आर्टिफिशियल मेथड। अभी दूसरा जो हम देख रहे हैं रूट कटिंग, यहाँ ये सफेद मूसली जिसको हम क्लोरोफाइटम बोलते हैं, इसका पौधा है और इसे जमीन से निकाल के देखिए अभी यहाँ पर रूट्स है। अगर ये रूट फिर से लगाएंगे तो इससे भी नया पौधा तैयार होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रूट कटिंग। और ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड होगी। और तीसरा है लीफ, जैसे बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके लीफ से ही नया पौधा तैयार हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि ब्रायोफाइलम, इसका जो लीफ है अगर ये लीफ भी लगा है, इससे भी नया प्लांट आता है। सो ऐसे स्टेम, रूट और लीफ, इससे जो इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंडिविजुअल विच आर फॉर्म बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ऐसा ये स्टेम कटिंग्स है इसमें जो एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग। अब ये स्टेम कटिंग क्या है? दिस स्टेम कटिंग द सेक्शन ऑफ द स्टेम विथ नोड्स विच आर प्लांटेड टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स, मतलब ऐसा एक सेक्शन है प्लांट का जिसको हम स्टेम कटिंग कहते हैं, स्टेम का सेक्शन जिसमें नोड और इंटरनोडल पोर्शन है। जैसे अगर हम इस प्लांट सैपलिंग को देखेंगे तो इसमें आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये नोडल पोर्शन है। जिस पर इधर भी आप देखोगे इसमें भी नोडल पोर्शन दिखेगा। प्लांट स्टेम में नोड और इंटरनोड रहता है।
और जो स्टेम कटिंग यूज किया जाता है इसमें देयर शुड बी द नोड्स, उसमें नोड होना चाहिए, विच जो भी स्टेम कटिंग यूज किया जाता है फॉर द प्रोपगेशन उसके लिए। एंड दिस कटिंग मेड फ्रॉम द स्टेम, जो भी स्टेम कटिंग तैयार किया जाए दिस शुड बी हेल्दी एंड डिजीज फ्री, उसमें वो हेल्दी होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए। द स्टेम सेगमेंट दैट में हैव टर्मिनल बर्ड्स और लैटरल बर्ड, उसमें टर्मिनल बर्ड या लैटरल बर्ड भी हो सकता है। एंड फ्रॉम विच दैट दे डेवलप द रूट एंड देन दिस फॉर्म द इंडिपेंडेंट प्लांट। अभी जो स्टेम कटिंग है, ये स्टेम कटिंग जिसका जिससे नया इंडिविजुअल तैयार करना है उस स्टेम कटिंग का प्रॉपर साइज होना चाहिए, उसकी लेंथ होना चाहिए, उसमें कितने इंटरनोड है वो भी होना चाहिए, और उससे ही नया प्लांट बनेगा। सो दिस टाइप ऑफ the wood stage of growth, time of making the cutting, these are important for the satisfactory growth। मतलब अगर स्टेम कटिंग से नया इंडिविजुअल बनाना है तो उसके लिए वो कौन से स्टेज में उसकी ग्रोथ हो रही है, टाइम ऑफ मेकिंग द कटिंग्स, मतलब कौन से समय पे उसका कटिंग बनाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडिविजुअल और फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स। एंड ये जो स्टेम कटिंग से जो प्रोपोगेशन किया जाता है, जैसे इसका एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है रोज है, हिबिस्कस प्लांट है, जो हम जिसको हम जासवन कहते हैं मराठी में, और उसके बाद है बोगनविलिया, ये भी स्टेम कटिंग से तैयार होता है। इसके बाद जो मेडिसिनल प्लांट है, जैसे ये एडाथोडा अडूरसा जिसे कहते हैं, और ये टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसे गुड़वेल गुड़ची कहा जाता है। तो ये भी स्टेम कटिंग से ही तैयार होता है। अभी ये जो स्टेम कटिंग है, ये तीन प्रकार के स्टेम कटिंग यूज किए जाते हैं। एक है हार्डवुड कटिंग, दूसरा है सेमी हार्डवुड कटिंग, और तीसरा है हर्बेसियस कटिंग। हार्डवुड कटिंग यानी जिसमें हार्डवुड का जो प्लांट वुडी प्लांट्स है, इस वुडी प्लांट के स्टेम कटिंग यूज किए जाते हैं। और ये जो कटिंग यूज किए जाएंगे तो दैट कटिंग शुड नॉट हैव द लॉन्ग इंटरनोड, मतलब जिसका इंटरनोड लॉन्ग नहीं होना चाहिए। कटिंग शुड नॉट टेक फ्रॉम द इंटीरियर रीजन ऑफ द प्लांट, मतलब बहुत अंदर से नहीं होना चाहिए। टिप ऑफ द शूट और द स्टेम दैट लो इन स्टोर्ड फूड, मतलब जिसमें स्टोर्ड फूड कम है वो नहीं लेना चाहिए। और इसका जो डायमीटर है, जो भी हम कटिंग यूज करने वाले हैं, वो 5 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज, उसको उतना होना चाहिए। दूसरा है सेमी हार्ड वुड कटिंग्स, मतलब जिसमें ज्यादा वुडी भी नहीं है और हर्बेसियस भी नहीं है। मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट फ्रूट ट्री दीज आर प्रोपोगेटेड। इसका जो कटिंग है ये 7.5 या 15 सेंटीमीटर इन लेंथ होना चाहिए, उसका जो लेंथ है। और इसका जो एग्जांपल है जो मैंने पहले भी बताया, तो रोज है, बोगनविल है, हिबिस्कस है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हर्बेसियस इन नेचर है, जैसे आप ये साइड में देख रहे हो, एक क्लाइंबर है जिसको हम पाइपर लॉन्गम कहते हैं। इस पाइपर लॉन्गम में ये एक स्टेम कटिंग है, जिसमें आप देखोगे ये नोडल और इंटरनोडल पोर्शन है। ये नोडल पोर्शन है जिसमें एक दो तीन ऐसे नोड है। तो ये जो कटिंग है, दीज आर कटिंग मेड फ्रॉम दिस हर्बेसियस प्लांट्स। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो ऐसे स्टेम कटिंग्स यूज किए जाते हैं फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द आर्टिफिशियल मीन। ये आर्टिफिशियल मेथड से हो गया हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और हर्बेसियस कटिंग। इसके बाद है तीसरा दूसरा जो कटिंग है, जैसे एक स्टेम कटिंग देखा, तो दूसरा है रूट कटिंग। सो पोर्शन ऑफ द रूट दैट आर यूज टू रीजनरेट द शूट, मतलब नया प्लांट तैयार करने के लिए जो पोर्शन यूज किया जाता है रूट का, जिसको हम कहते हैं रूट कटिंग्स। सो रूट पीसेस दैट इज फ्रॉम द यंग स्टॉक प्लांट, मतलब वो यंग स्टॉक प्लांट से होना चाहिए। एंड दैट रूट शुड बी सप्लाइड विद द स्टोर फूड्स बिफोर द न्यू ग्रोथ स्टार्ट, मतलब उसको नया ग्रोथ शुरू होने के पहले उसको फूड मटेरियल जाना चाहिए। एंड दैट कटिंग ऑफ 2.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसका प्रॉपर साइज प्रॉपर लेंथ होना चाहिए वो रूट कटिंग का। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये जो रूट कटिंग है, जैसे ये सफेद मुसड़ी क्लोरोफाइटम,
ये क्लोरोफैटम का ये जो रूट कटिंग्स है, ये रूट कटिंग से नया प्लांट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद है अनदर टाइप ऑफ कटिंग इज द लीफ कटिंग्स। मतलब कुछ प्लांट ऐसे है जिसका लीफ इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर फॉर्मिंग दी न्यू प्लांट्स। जैसे कि हम बहुत बार देखे ब्रायोफाइलम, जिसे पत्थर चटा कहा जाता है, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके जो लीफ है, ये लीफ से भी नया प्लांट तैयार होता है। तो जिस लीफ ब्लेड plus petiole and leaf bud that are used for making the new plants, और उसमें adventitious root that are developed from the base of the petiole or the leaf, and from this formation of the new plant, इससे नया प्लांट तैयार होगा। इसका एग्जांपल मैंने बताया ब्रायोफाइलम। सो ये तीन टाइप्स के कटिंग्स हो गए, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। अभी इसका जो फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, जब भी हम स्टेम कटिंग या कोई भी कटिंग यूज करते हैं बाय द फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द आर्टिफिशियल मीन, सो दिस रूट डेवलपमेंट, मतलब जिसमें रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बगैर तो नया प्लांट तैयार नहीं होगा। सो दिस रूट डेवलपमेंट दैट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस टिश्यू, उसमें कैलस तैयार होगा, फॉलोड बाय द इमर्जेंस ऑफ एडवेंशियस रूट फ्रॉम द परफॉर्म और इंड्यूस्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इसके लिए जो हार्मोन यूज किया जाता है या केमिकल यूज किया जाता है जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या एनएए, दीज आर कॉमनली अप्लाइड टू एनहांस द रूटिंग एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसे ही हम स्टेम कटिंग या रूट, जनरली स्टेम कटिंग जो लगाते हैं, वो स्टेम कटिंग में रूटिंग आने के लिए ज़्यादा समय लगता है। अगर वो समय रिड्यूस करना है, उसके लिए ऑक्सिन, पर्टिकुलरली इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को अगर इस्तेमाल किया जाता है, उससे अगर उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रूटिंग जल्दी आएगा। सो ये हो गया उसकी फिजियोलॉजी एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। उसका हार्मोन क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, विच इज ऑकर्ड बाय द स्टेम कटिंग्स। और इसके लिए जो भी कंडीशन है जिसको हम इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि एडिक्वेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उसमें मॉडरेट टेम्परेचर टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, और गुड एरेशन टू प्रमोट द रूटिंग रूटिंग, मतलब उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए उस सॉइल में, और उसका प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, तभी उसमें रूटिंग होगा। और यूज ऑफ मिस चैम्बर रूट मीडिया लाइक सैंड और द कोकोपीट एंड फंगिसाइड दैट हेल्प टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट, मतलब उसका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज द environmental requirements. Now, what is the advantage of this stem cutting? The most important mean of propagating ornamental shrubs, evergreen fruits and vegetable crops. So ये प्रोपोगेटिंग मेथड के लिए, प्रोपोगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और अच्छे तरीके से इससे पौधे तैयार हो सकते हैं। These are widely used commercially in the greenhouse propagation. इसमें ग्रीन हाउस प्रोपोगेशन में ही स्टेम कटिंग का यूज इस्तेमाल किया जा सकता है। मेनी न्यू प्लांट्स कैन बी स्टार्टेड इन लिमिटेड स्पेस फ्रॉम द फ्यू स्टॉक प्लांट। जैसे हमारे पास अगर कुछ कम स्टॉक प्लांट है और उसके हम कटिंग यूज करते हैं, सो नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड with the help of the stem cutting or the root cuttings, or in some cases by the stem cutting। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इन एक्सपेंसिव है, थोड़ा जल्दी हो सकता है, रैपिड है, और रैपिडली कर सकते हैं, और ये सिंपल मेथड है जिसमें कोई ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सो देर इज नो प्रॉब्लम फॉर कंपेटेबिलिटी विद द रूट स्टॉक और द पुअर ग्राफ्ट यूनियन। मतलब जैसे कि ये स्टेम कटिंग है जिसमें किसी पार्ट का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कोई बर्ड हम नहीं लगा रहे, डायरेक्टली उस स्टेम कटिंग या वो पार्ट को ले रहे, इसीलिए उसमें कोई कंपेटेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रूट स्टॉक और जैसे हम ग्राफ्टिंग में दो प्लांट को ये मिक्स करते हैं, तो उसमें एक प्लांट का प्रॉब्लम है तो वो बराबर कॉम्पिटेबल नहीं होगा, या फिर नया प्लांट प्रॉपरली तैयार नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें यूनिफॉर्मिटी प्रॉपर रहेगी, मतलब ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वेरिएशन। मतलब जैसे हम स्टेम कटिंग यूज करें, इसमें कोई टाइप का वेरिएशन नहीं आएगा,
जैसे स्टेम कटिंग यूज कर रहे, जो मेन स्टॉक प्लांट है जिससे हम वो स्टेम कटिंग यूज कर रहे हैं, वैसी उसी तरीके से वो प्लांट तैयार होगा। और दूसरा एडवांटेज है कि रिक्वायर्स मिनिमल इक्विपमेंट एंड स्पेस। इसके लिए जो जगह लगेगी या इसके लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे वो बहुत ही कम लगेंगे। इसके लिए क्या, स्टेम कटिंग के लिए कटर लगेगा, और उसके लिए जो स्पेस लगेगी जिसमें हम लगा रहे हैं उतना स्पेस उसको लगेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस cuttings. Means this is the what we have seen. We have seen the vegetative reproduction. In that, artificial vegetative reproduction, by vegetative reproduction by artificial mean, और उसमें हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द कटिंग्स। और उस कटिंग्स में हमने देखा कि कौन से इससे तैयार होता है, जैसे स्टेम कटिंग देखा, रूट कटिंग देखा, और लीफ कटिंग देखा। और उसका हमने देखा कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, और उसका एडवांटेज क्या है। और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय, या फिर